हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर, यानी यहाँ पर जो है साइंस और प्रौद्योगिकी जो हमारा क्लास 10वीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी अनुवंशिकता और विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और उन क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और हर बात को जो है क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर बात की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और कुछ क्वेश्चनों का जो यहाँ महत्व रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, heredity and evolution. That's important. Class 10 CBSE NCERT here, science and technology. There is the next question arrive here, that's important. What is a sex chromosome and types of chromosome? You know that's an important question here. What is a sex chromosome and here are types. The chromosomes that are responsible for the determination of sex in an individual are known as the sex chromosome. You know that is important. Chromosomes that are responsible for a determination of sex in individual are known as the sex chromosome. There are two types of chromosome here, X chromosome and Y chromosome. That's generally two types here, X chromosome and Y chromosome. The male possesses one X and one Y chromosome here, but female possesses two X chromosome. You know that's important. The male here possesses a X and Y chromosome, and other side females opposes two chromosome, XX chromosome. That's important here. And let's see types of chromosome generally here. The types of chromosome, that's important. There is a centromeres here. You know the types of centromeres here. That's important. The first centromeres here, metacentric. First of all here, metacentric. It is a chromosome with the centromere near the middle and two chromatics of equal length. You know that this metacentric is a chromatics are equal length. And second here, submetacentric. Submetacentric here, the centromere is situated slightly closer to one end than the other. That's important. There is a centromere is situated slightly closer to one end than the other, and thus one chromatic is slightly longer than to the other. That's important point here. And the next here, acrocentric. Acrocentric here, the chromosome is situated near one end of the chromosome, and thus one achromatic is very long while the other is very small. You know that the chromatic one here is very long and other is very small. And telocentric here.
Telocentric, here the centromere is situated at the tip of the chromosome. You know that is important. And let's see here the centromeres on figure here. You know that on your screen there is a centromere here. Centromere is a 4 types here, generally explained here. And the centromeres, there are first of all telocentrics. I have already described there are telocentrics here. And second is a acrocentrics here. And third, some metacentric here. And last is a metacentric. You know that is important. And the upper side is a P arm and lower side is a Q arm. That's important. And centromere here, a center of part. This is a 2 circle, the show of centromeres here. That's important diagram here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर आनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं CBSE NCERT साइंस और प्रौद्योगिक, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लिंग गुणसूत्र क्या है और गुणसूत्रों के प्रकार क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की, तो कहते हैं लिंग गुणसूत्र जो होता है किसी भी व्यक्ति में लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये जनरली पुरुषों में ही होता है। कहते हैं कि पुरुषों में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जो क्रोमोसोम किसी व्यक्ति में लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, कि जो क्रोमोसोम किसी व्यक्ति में लिंग को निर्धारण करता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र। तो आप समझ गए होंगे एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। कहते हैं पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है एक्स गुण दोनों जो है उनका गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर लड़का होना या लड़की होना सारी की सारी बातों जो है पुरुषों पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाई क्रोमोसोम पुरुषों के होते हैं, वो लड़के के लिए जिम्मेवार होता है, और पुरुषों के जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो लड़कियों के लिए जिम्मेवार होता है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है पुरुष जो है गुणसूत्रों को निर्धारित करते हैं। यहाँ महिलाओं में से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही जो है मिलता है। आगे अगर हम बात करें गुणसूत्रों के प्रकार यानी सेंट्रोमेयर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ देखा जाए सेंट्रोमेयर्स की बात करें तो काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं पहला जो हमारे समक्ष आया है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और यह एक गुणसूत्र है जिसमें मध्य के पास सेंट्रोमेयर होता है और दोनों जो है वर्णक्रम सामान्य लंबाई के होते हैं। यानी मेटासेंट्रिक जो होती है सेंटर में पाया जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उप मेटासेंट्रिक की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो उप मेटासेंट्रिक होती है यहाँ सेंट्रोमेयर का छोर से दूसरे छोर से थोड़ा करीब स्थित होता है और इस प्रकार एक रंगीन दूसरे की तुलना में थोड़ा लंबा जरूर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम तीसरी की बात करें एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं यहाँ गुणसूत्रों के एक छोर के पास स्थित होता है और इस प्रकार एक वर्ण बहुत लंबा है जबकि दूसरा बहुत छोटा होता है। एक लंबा होगा दूसरा छोटा होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें हम टेलोसेंट्रिक फेस, तो कहते हैं टेलोसेंट्रिक में ये सेंट्रोमेयर गुणसूत्र के सिरे पर स्थित होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर गुणसूत्रों की जो है 4 यहाँ पर रूल बताई गई है। अब डायग्राम भी हम देखेंगे तो ये काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि आखिर गुणसूत्र हम कहते किसे हैं और ये सेंट्रोमेयर की जो हम बात कर रहे हैं आखिर सेंट्रोमेयर होता कैसे है। आपने एक्स क्रोमोसोम देखा है, उनको ही जो है डिफरेंट पार्टों में जो है इसको बताया गया है। चलिए इस बात को आपको और क्लैरिटी के साथ बताएं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा यही गुणसूत्र जो एक्स क्रोमोसोम है आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके सेंटर में जो आपको 2 गोले दिख रहे हैं उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन गुणसूत्रों की जो संख्या ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ती है।
पहले अगर आप देखोगे टेलोसेंट्रिक्स जो है इसमें बिल्कुल ही ऊपर आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा जहाँ सेंटीमीटर दर्शाया गया है। अगर हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं एक्रोसेंटीमेट्रिक्स में, तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर जो सेंटीमीटर्स है उसके आगे जो है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने लग गई है। अगर तीसरा में अगर आप देखोगे तो सब मेटासेंट्रिक्स में कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक्स में जो है जो हमारा सेंटीमीटर्स है, जो दो गोले दिख रहे होंगे उसे सेंटीमीटर्स कहते हैं। उसमें देखिए आगे कितनी जो है क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, गुणसूत्र कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। और एटलीस्ट जब आप मेटासेंट्रिक में आइएगा तो मेटासेंट्रिक में जो है गुणसूत्र बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके जो बना हुआ ऊपर का सिरा होता है उसे हम पी आर्म्स के नाम से जानते हैं, और जो निचला सिरा होता है जो बनता है उसे क्यू आर्म्स कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रोमोसोम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है, और एग्ज़ाम व्यू से ये महत्व भी रखता है। इसको अच्छे से समझना है, करना है और विचार करना है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे देखेंगे, समझेंगे, नहीं अच्छा लगेगा लीव कर जाएंगे, लेकिन आपने अपना कार्य किया, त्रिपाण स्टडी सेंटर ने अपना कार्य किया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि समय समय पे आपको वीडियो प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर हर समय आप लोगों के लिए ही अग्रसर है, और यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। कहते हैं 10वीं के बाद 11वीं में भी त्रिपाण स्टडी सेंटर ही रहेगा, 12वीं में भी त्रिपाण स्टडी सेंटर रहेगा, कहते हैं BA में भी त्रिपाण स्टडी सेंटर रहेगा सभी सब्जेक्टों के साथ, और MA में भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए चैनल है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।